आसा महला पंजवा। इन स्यों प्रीत करी कनेरी, जो मिली है तो वदे वदेरी। गल चमड़ी जो छोड़े नाही, लाग छुटा सतगुर की पाई। जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वदाई रहो। ऐसी सुंदर मन को मोहे, बाट काट ग्रह बन बन जो है। मन तन लागे होए कै मिठी, गुर प्रसाद में खोटी डिठी। अगर कं उसके वडे ठगाओ, छोड़े नाही बाप न माओ। मिली अपने उनले बांदे, गुर कृपा ते मैं सगले सांदे। अब मोरे मन पया आनंद, पौ चुका टूटे सब फंद। कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी वसाया। मैं तान दीवान तो है मेरे स्वामी, मैं तो दे आगे अरदास। मैं होर थाओ नाही, जिस पै करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। समर्थ गुरु लोक परलोक दे रखियक भगत वशल ज्ञान दे सागर। गुरुआं दे गुरु भगतां गुरुआं पट्टां सिखां दी इलाही बाणी बाणी। जोत रूप शब्द रूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद विच गुर शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत जी बड़ भागे हाँ। गुरु साहब ने मेहर कृपा दया की है सानू अपने चरणों दे विच। महाराज जी ने सानू बुलाया है, बुलाया बोली तेरा, उसने बुलाया है और उसका बुलाया ही बोलना है, उसका सुनाया ही सुनना, उसका तोरिया ही तुरना, उसका कराया ही करना, उसका समझाया ही समझना। सो गुरु साहब की मेहर हुई है। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार गुरु साहब ने समा बख्शिया। सो आओ इस समय नू गुरु की बख्शिश नाल सफल कर रही है। जिंदगी एक सफ़र है, इस सफ़र नू सही कर लईए, इस सफ़र नू सफल कर लईए तां जो सफ़र या यात्रा साडी सफल हो सके। महाराज जी की बाणी दे विच इन्नियां प्यारियां विचारां हन, इन्ना वड्डा ज्ञान है, वड्डा ज्ञान है
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜਾਂ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ।
हर मनुख की कार या हर मनुख का काम जिहड़ा वो भगती बन सकती है। ध्यान देना, हर मनुख की कार या वह जिहड़ा भी काम है वो भगती है। जब कोई किरत करता है वो भी भगती है, वो भगती बन सकती है। पर जे किसी को जुगती आ जाए, जे किसी को जुगती आ जाए तो जिहड़ी गुरु की सिफत करनी है या सुननी है या सुनानी है, ये जिहड़ा कारज है ये दुनिया दे विच बहुत महान कारज है। किसी को रब की सिफत करन दा या किसी को रब की सिफत सुनाउण दा जिसनों भी मौका मिलता या जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, वो इंसान बहुत वड्डा हुंदा है, वो आम इंसान नहीं हुंदा। सो इसलिए जिहड़ा रब की गल अपनी किरत के दौरान भी करदा है, अपनी कमाई करदियां भी करदा है, तो गुरु साहब उस दे लई बहुत वड्डी बख्शिश अपने कोल रखते हैं। उसनों देण दे लई गुरु साहब बहुत वड्डी किरपा उस ते करन नूं तैयार रहिंदे ने, पर उसनों उसदी उडीक करवाउंदे ने। जे ते महाराज जी नूं लगे भी ये योग है, ध्यान देना, गुरु साहब साडे कर्म देख के बख्शिश अपने कोल साਂਭ लैंदे ने भी इहनूं देनी है। साडे कर्म जदों बनते हैं, बड़ी बारी तुसीं सुनिया चंगे कर्म जदों बनते हैं तो नाल ही उहदे नाल बख्शिश भी बन जाती है। जां सौखा तरीका असीं देख लईए, जदों कोई पैसे जमा कराउंदा है 10-20 लाख बैंक में, उहदा ब्याज अपने आप ही बन जाता है, कंप्यूटर अपने आप ही दस दिंदे ने। जदों कोई नाम सिमरन भजन सतसंग करदा है तो उहदी जिहड़ी है उहदा कर्म बन जाता है, तो उन्होंने जिहड़ी बख्शिश मिलनी हुंदी है गुरु साहब अपने कोल रख लैंदे ने। जिवें भाई लहना जी ज्यों ज्यों सेवा करते हैं, उन्हां दी बरकत बख्शिश गुरु नानक महाराज अपने कोल जमा करी जाते हैं देण दे लई। तो जदों महाराज जी ने वो बख्शिश देनी है, ध्यान देना, जिवें बख्शिश देनी है तो फिर जिवें असीं बैंक दे विचों अपने ही पैसे कढाउणे होण ते अपने साइन करने पैंदे। जे साइन सिग्नेचर दस्खत ना मिलन तो वो गवाही मंगदे ने। अपने ही पैसे कढाउणे होण, जे साडे सिग्नेचर दस्खत ना मिलन वो कहंदे ने भी गवाही दिओ। महाराज अपने कोल सानू बख्शिश देण दे लई रखदे ने। वो साडे भागां दी हुंदी है, साडे कर्मां दी हुंदी है बख्शिश। तो जदों महाराज जी देन लगते ने बख्शिश, तो फिर कईयां नूं ते सारी दे दिंदे ने, कईयां नूं थोड़ी दिंदे ने, कईयां दी कोल ही रख लैंदे ने, दिंदे ही नहीं। ध्यान देना, कईयां दी सारी बख्शिश कोल रख लैंदे ने, कईयां नूं अद्धी दे दिंदे ने, कईयां नूं सारी दे दिंदे ने। ये क्यों? क्योंकि गुरु साहब जी सिदक भरोसा ये हर एक दी शरधा ये देखते हैं कि इसका मेरे ते पक्का भरोसा शरधा है, इसनों हुण मेरे ते यकीन हो चुका है, ये पंक्ति ते चल चुका है, जे आए भावें मार। तो जे किसी की इदां दी अवस्था बन गई, उन्होंने महाराज जी कहते चुक सब कुछ अपना ले जा। तो जिहड़ा करदा होया कर्म मन विच कई बार भरम लै आउंदा, पता नहीं ये चीज़ होनी है या नहीं, बख्शिश मिलनी है या नहीं। की फायदा होया इन्ना चिर पढ़न दा, की फायदा होया इन्ना चिर जाण दा, की फायदा होया इन्ना चिर सुनन दा। तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ बख्शिश है वाकई ही महाराज जी रोक लेंदे ने, रुक जाती है। बाणी विच लिखिया होया भी सब ही उपर नज़र प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। रब मेहर ते सारियां ते करदा, किसे ते ज़्यादा कर दिंदा, किसे ते थोड़ी करदा। जां ठेठ पंजाबी विच ये भी कह सकते हाँ जिवें नीतां नूं मुरादां। जदों महाराज जी साडा सुभाव वेखदे ने,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਦਲੇ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਕ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੇ ਭਜਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ, ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ, ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ।
परमेश्वर नूं भुल्लण दा मतलब जिहड़ा उहदा हुक्म उहदी आग्या उहनूं असीं विसार दिता ते तूं चीत आवे तां सब को लागू, चीत आवे तां सेवा, तूं विसरै। खिमा करना बाणी की पंक्ति है, तूं विसरे तां सब को लागू, चीत आवे तां सेवा। जदों महाराज जी का हुक्म असी विसार दिंदे हाँ तो महाराज जी कहते सारे ही दुख कलेश चिंबड़ जाते हैं। जदों हुक्म नूं मन लैंदे हाँ तो सारे दुख दलिद्र कलेश जिहड़े ने भज जाते हैं। वो भावें माड़े तो माड़ा पाप भी क्यों ना होवे वो भी चला जाता है। सो इसलिए गुरु साहब जी सानू दस रहे ने भी कर्म करन दे नाल ही बरकत आउंदी है, माड़ा कर्म करन दे नाल ही साडी कीती कमाई निफल चली जाती है। सो अपनी अपनी कमाई नूं सारे साम के रखो जे अपने अपने घर विच किसी ने सुखी वसना है। सो गुरु साहब जी की पंक्ति बड़ी प्यारी असीं सरवण कीती है। इन स्यों प्रीत करी कनेरी, माया की गल कर रहे हैं, संसार की माया, पैसे नहीं कल्ले, जिहड़ी भी चीज़ परमात्मा तो दूर कर दी उन्होंने कहते हैं। कहते उस माया ने इन स्यों प्रीत करी कनेरी, असी इस संसार के नाल बहुत प्रीत जिहड़ी है गहरी प्रीत कीती है, कनेरी बहुत ज़्यादा कीती है संसार की माया के नाल। जो मिलीए तो वधे वधेरी, तो ज्यों ज्यों ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਣੀਏ। ਗੱਲ ਚੰਬੜੀ ਜੋ ਛੋਡੇ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲਾਗ ਛੁਟੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ, तदों सतगुरु के चरनी लग के महाराज जी कहते बंदा खलासी पा सकता है, छुट सकता है। महाराज जी कहते संसार के रस माया चिमड़ी हुई है तो गुरु के चरणों के नाल लग के महाराज जी कहते इस तो छुटकारा पाया जा सकता है। जग मोहनी हम त्याग गवाई, गुरु साहब जी फरमान करते हैं महाराज अकाल पुरख की कृपा दे नाल इस जगत नूं जां मन नूं मोहण वाली इस माया नूं असीं त्याग के परे सुट दिता, जां इस नूं पट के परां सुट दिता। जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई। जदों संसार के रसां नूं पट के परां सुट दिता तो गुरु साहब जी कहते फिर निर्गुण वो अकाल पुरख सानू मिल पिया तो मन विच वधाई, मतलब मन विच खुशी छा गई या उत्साह मिल गया। जदों संसार के मोह रस की जड़ नूं पट के परां सुट दिता तो फिर की होया, निर्गुण मिलियो। वो निर्गुण दाता जिहड़ा सानू मिलिया मिलता नहीं सी पिया। वो क्यों नहीं मिलता पिया सी, क्योंकि रस जिहड़े सी उस दे नाम रस नूं चखण नहीं सन दे रहे, उस रस नूं पीण नहीं दे रहे सी, क्योंकि उन्होंने सानू अपने आप विच इन्ना उलझा रहा भी सानू नाम रस दे लागे जान ही नहीं दिता, होर रसां दे विच उलझाई रखिया। तो फिर साडा जिहड़ा जिंदगी का समा खराब ही चलता रहा। तो जदों महाराज जी कहते इस रस की जड़ पुट के सुट दी तो निर्गुण मिले वजी वधाए। वो निर्गुण मिल गया, अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ, उत्साह पैदा हो गया। ऐसी सुंदर मन को मोह है। गुरु साहब जी कहते भी संसार की माया सुंदरी है, मोहनी है, रसां वाली है। ये मन नूं तुरंत तुरंत मतलब एकदम मोह लेंदी है। जिहड़ी बाणी है, कीर्तन है, कथा है, गुरबाणी का पाठ है, ये एकदम मन नूं नहीं मोह लैंदा। ध्यान देना, जिहड़ी दुनियावी चीज़ां ने, दुनियावी रस ने, वो जीव ते रखिया नहीं तो एकदम बंदा कहता कोई चीज़ खाधी, कहता ये आधा किलो की जगह किलो दे दे, एकदम उहदा रस कबूल लिया।
एकदम फाइनल डिसीजन ले लिया भी ये मैनू पसंद है। तो जिहड़ी गुरबाणी है जां जिहड़ा नाम रस है उसनूं बंदा एकदम सुन के एकदम नतीजे ते नहीं पहुँचता, एकदम नतीजे ते नहीं पहुँचता। सो इसदा मतलब है सानू वध जिहड़ा है वो इस संसार दे रस जां माया ने ही अपने वल खिंचिया होया है। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट घाट ग्रह बन बन जो है। कहते रस्ते विच तुरदे हाँ, पत्तन लंघदे हाँ, जंगल विच लंघदे हाँ, जिथे भी जाओ ये जिहड़ी है मन नूं छड्डदी ही नहीं। मतलब कहते हैं कहण दा कोई घर छड्ड के जंगल चला जाता है, कोई घर छड्ड के कहता दूर चला जावां, बहुत ही परेशानी है। तो गुरु साहब जी कहते ने ये फिर भी नालों नाल देश छोड़ परदेसे धाया, पंज चंडाल नाले ले आया। जिथे भी असी जावांगे बंदा किसी थां तो दुखी हो के कहता मैं दूसरी थां ते दूर चलिया जावां। पर गुरु साहब जी कहते ने जिहड़ी माया का प्रभाव रस है वो उत्थे भी चाहे कोई जंगल विच क्यों ना चलिया जाए, चाहे कोई चश्मिਆਂ ਦੇ लागे क्यों ना बह जाए, दरियावां ਦੇ किनारे क्यों ना बह जाए, शांत जगह ते एकांत विच। पर जिहड़े अंदर लड़ाई करते ने पंज विकार जिसनों कहते ने, पंज चोर जिसनों कहते ने, ये उत्थे भी चले जाते हैं, ये जंगल विच भी चले जाणगे। जे किसी डेरे विच चले जाइए तो उत्थे भी चले जाते हैं। इन्हां नूं मगरों लाउणा पैंदा, इन्हां तो पिछा छडाउणा पैंदा। सो गुरु साहब जी कहते है ही ये ऐसी ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट घाट ग्रह बन बन जो है। तो ये जिथे मर्जी चले जाओ वो उत्थे भी आ जाती है। ध्यान देना, माया जिहड़ी है केवल सानू घर दे विच तंग नहीं करती, माया हर जगह अपना डंग चला देंदी है, हर जगह ते अपना प्रभाव छड़ देंदी है। ध्यान देना, जदों इंसान परमात्मा परमेश्वर नूं भुल के मन मत करदा, मन दीयां गल्लां करदा, समझो भी परमेश्वर रब भुल गया, चाहे वह घर बैठा चाहे गुरु घर बैठा। जदों अपने मन दे विच लग के मन की गल करदा, संसारी गल करदा, तो गुरु साहब जी कहते ने भी समझो माया का प्रभाव पै गया। जिसने मनुख की हालत ते हालात नूं प्रभावित किया, इहदा मतलब उस दे उपर छाया आ गई माया की। सो गुरु साहब जी कहते इस करके चाहे कोई जंगल है, चाहे कोई पत्तन है, चाहे कोई भी चीज़ है, ये हर थां तैयार रहिंदी है, पर मनुख दे अंदर दी दृढ़ता ने इसनूं दूर रखना है। अंदरली जिहड़ी इसदी खिच है परम पिता परमात्मा प्रति, उसने इसनूं दूर रखना, नहीं तो ये कई तरीकों के नाल प्रभावित करती रहेगी। मन तन लाग होए क्या मिठी, ये मिठी बन के महाराज जी कहते चिमड़दी है, मिठी होए के चिमड़दी है। जिवें बड़ी बार पंक्ति पढ़ी है भी ये विस गंदलां धरियां खंड लवाड़, ये मिठी हो के सानू मिलती है। जिवें देखो गुरु साहब जी कहते निंदिया माड़ी है पर निंदिया मिठी लगती है। मनुख करदा चुगली माड़ी है पर यह बंदा बहुत मिठी समझ के करदा है, वो जहर पर मिठी समझ के करी जाता, तो अपने अंदरले जिहड़े कर्म ने उन्होंने नष्ट करी जाता। अगरक उसके वड्डे ठगाहू। तो महाराज जी कहते ना भी माया दे अगे लगन वाले आगू अगरक जिहड़े इसनूं मतलब गाइड करते हैं, वो भी वड्डे ठग ने। ध्यान देना, मन जोत स्वरूप भी है, मन साडा गाइड है, तो मन साडा जोत स्वरूप भी है, तो मन साडा ठग भी है। आप भी ठगिया जाता, इनू भी ठगा देंदा है। मन कहता भी आ काम कर दईए, आ गल कर दईए, ये बचन मूँह चों कढ़ दईए। की किया मन ने? ठगिया गया ना, ठगा दिता। सो गुरु साहब जी कहते हैं ये जिहड़े अगवाई करने वाले ने जां अगवाई करने वाला है, माया दी अगवाई भी मन करदा। ध्यान देना, तो शब्द नूं भी अंदर मन ही वसाउंदा है। मन का एक रूप नहीं है,
एक पक्ष नहीं है। मन के अलग अलग पहलू ने, अलग अलग पक्ष ने, अलग अलग रूप ने, तो मनुख किस रूप के विचरदा ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है। सो सच्चे पातशाह जी कहते छोड़े ना ही बाप ना माऊ। बाप का मतलब पिता, तो माऊ का मतलब माँ, चाहे किसी की माँ हो चाहे किसी का बाप हो, इसने किसी को भी बख्शिया नहीं। इन्हें ठगी लिया सारिया, इन्हें बिन दंता जग खाया। महाराज जी कहते मेली अपने उनले बांधे, मेली अपने उनले बांधे। तो इन्हां दे नाल जदों मुलाकात होंदी है तो ये माया जिहड़ी अपने नाल सारिਆਂ ਨੂੰ बन लैंदी है, बन लैंदी है, जकड़ लैंदी है, छड्ड नहीं सकती। जां बंदा इस नूं छड्ड सकदा नहीं तो माया भी उस नूं छड्ड सकदी नहीं। वो कहंदे असीं दोनों ही इक्को ही हाँ, चल रल मिल के अपनी जीवन की यात्रा शुरू करिए। ध्यान देना, जिवें नशई नूं नशा, नशे नूं नशई, दोनों का आपस में बड़ा कंबीनेशन वधिया है। नशई ना नशा छड्डदा तो नशा ना नशई छड्डदा। नशे नूं भी आमदन चाहिए है, नशई नूं भी सुरूर चाहिए कुछ वक्ती तौर पर। दोने एक दूजे नूं ईच अदर परस्पर नहीं छड्डदे। माया भी महाराज जी कहते इदां ही है, वो अलग अलग रूपों के कोई दुनिया दवन का एक भी सिर्फ पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी तो बगैर कह नहीं सकता भी वो माया के प्रभाव तो बचिया हुआ है। हाँ, ये गल परसेंटेज जरूर है भी किन्ने परसेंट किसी को 99 या 100% उन्होंने डंगदी है, 10 20 या 5 4 2 1, ये वक्री वक्री गल है, पर प्रभावित जरूर करती है। भगतां ने बाणी विच लिख दिता भी ये साडे मुहरे आगे भी खलो गई, असी इहदी फिर चंगी पटाई की, नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के डारी। ये संतन दी बैर ने जिहड़ी आगे सानू टक